Hello everyone and welcome back to Pill Talk. In today's video we will explore into fundamental class of drugs known as diuretics. Diuretics are an essential part of pharmacotherapy, particularly in the treatment of conditions like hypertension, heart failure, and certain kidney disorders. But what exactly diuretics are and how do they work? Let's start with the basics. Now let's jump on to historical development of diuretics. Diuretics, which increases urine volume, have been known since ancient times. Significant advancement occurred in 1937 with carbonic anhydrase inhibitors and in 1957 with chlorothiazide and a more potent diuretics. So diuretics होते क्या हैं? Diuretics are basically the drugs that increases the production of urine. Basically these are the medicinal agent or a substance which can induce diuresis. अब diuresis क्या है? डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर यूरिन की प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है. सो दिस प्रोसेस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग फ्लूइड ओवरलोड विच इज क्रूशियल इन मैनेजिंग कंडीशंस लाइक एडिमा एंड हाइपरटेंशन. एंड नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेटिक्स. फर्स्टली नेट्रियोरेटिक्स एंड सेकेंडली एक्वारेटिक्स. नेट्रियोरेटिक्स ऐसे सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो रीनल सोडियम एक्सक्रीशन को इंक्रीज करती हैं, ऑफन अकम्पेन्ड बाय इंक्रीज वाटर एक्सक्रीशन, हेंस कॉमनली रेफर्ड टू एज डायरेटिक्स. एक्वारेटिक्स ऐसे सब्सटेंस के एजेंट हो सकते हैं या ये ऐसे डायरेटिक हो सकते हैं जो सॉल्यूट फ्री वाटर एक्सक्रीशन कराते हैं विदाउट डायरेक्टली अफेक्टिंग सोडियम एक्सक्रीशन. इंक्लूड्स ऑस्मोटिक डायरेटिक्स एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन एंटागोनिस्ट. So there are different types of diuretics, each working at specific sites in the nephron, that is the functional unit of the kidney. We'll explore this type shortly, but first let's discuss the clinical importance and role of diuretics in treatment. So firstly, these are the drugs that block specific renal tubule transport functions and that are very crucial for treating fluid volume and electrolyte imbalances. इसके अलावा renal function को alter करके they play a vital role in managing conditions where fluid and electrolyte balance is disrupted, such as hypertension and edema. इसके अलावा their ability to modulate fluid and electrolyte balance make them essential tools in both acute and chronic medical settings. Proper selection and management of diuretic therapy are vital to ensure efficacy while minimizing potential side effects and complications. Now I am going to discuss some of the mechanisms through which diuretics act. Diuretics exert their effects through various mechanisms, जिनमें से हम 4 को डिस्कस करेंगे. Number 1 is they act on specific membrane transport proteins in renal tubular epithelial cells. Number 2, exerting osmotic effects to prevent water reabsorption. For example, जैसे कि हमारा मैनिटोल ऐसे काम करता है. Number 3, inhibiting enzymes. For example, acetazolamide जो कि inhibit करता है एक एंजाइम को, कार्बोनिक एनहाइड्रेस उसको inhibit करता है. Number 4, interfering with hormone receptors in renal epithelial cells. For examples, हमारे vasopressin antagonists. So ये एक table है that represents the major segments of the nephron and their functions. And the site of action within the nephron is what differentiates the various types of diuretics. तो अगर आप ये टेबल का एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं that will be better. इसको आप बाद में आराम से इस चीज़ को देख के क्विकली लर्न कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन कौन सा डायरेटिक कौन कौन से सेगमेंट पे काम कर रहा है. Before we discuss into specific types of diuretics, it's important to understand the role of renal autocoids in the regulation of renal blood flow and filtration, and they can also induce diuresis. Renal autocoids are locally acting hormones such as prostaglandins and kinins that modulate kidney functions. So, common renal autocoids include adenosine, prostaglandins, and urodilate. ये वो ऑटोकॉइड्स हैं जो रीनल फिजियोलॉजी में बहुत अपना एक सिग्निफिकेंट सा रोल प्ले कर रहे हैं और ये भी डायरेटिक्स के जैसा इफेक्ट रखते हैं और ये डायरेसिस करवाते हैं. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडिनोसिन पे. एडिनोसिन भी एक रीनल ऑटोकॉइड है और इसकी अगर नेचर या रेगुलेशन की बात करें तो ये एक अनफॉस्फोरिलेटेड राइबोन्यूक्लियोसाइड है और इसकी कंसनट्रेशन किडनी के अंदर तब इंक्रीज़ हो जाती है जब भी बॉडी में हाइपोक्सिया हुआ होगा या एटीपी का यूज़र जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ होगा. तो अगर हम बात करें कि रीनल ब्लड फ्लो और GFR पे इसका क्या असर है, ये क्या अफेक्ट रखता है, तो एडिनोसिन क्या करता है, डेट काजेज वेजो कॉन्स्ट्रक्शन. एफरेंट आर्टेरियोल्स की वेजो कॉन्स्ट्रक्शन करवा देता है ये एडिनोसिन, जिसकी वजह से GFR कम हो जाता है. हालांकि दूसरे टिश्यूज़ में एडिनोसिन हाइपोक्सिया के केस में वेजो डायलेशन करवा देता है वेसल्स की, लेकिन एक्सेप्शनल केस है किडनी के अंदर. So this response help maintain medullary oxygenation by decreasing sodium reabsorption in the cortex and reducing solute delivery to the medullary segments. अब उसकी वजह से क्या होगा कि सोडियम जो है वो कलेक्टिंग डक्ट तक कम आएगा और उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी.
जितना आएगा वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अगर बात करें एडिनोसिन के रिसेप्टर्स की, तो 4 तरह के रिसेप्टर्स हैं, A1, A2A, A2B एंड A3, with A1 receptors being particularly important in the pharmacology of diuretics. A1 receptors are located on the preglomerular afferent arteriole, proximal convoluted tubule and other tubule segments influencing ion transport. अब हम बात कर लेते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के ऊपर। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी रीनल ऑटोकॉइड्स में ही शुमार किए जा सकते हैं या कैटेगराइज किए जा सकते हैं, जिनमें आ जाते हैं PGE2, PGI2, PGD2, PGF2A एंड थ्रोम्बोक्सेन A2. These are also autocoids synthesized in the kidney with receptors in various renal tissues. Their specific role in renal physiology, especially through different receptor subtypes, like इनके भी receptors हैं EP1, EP3 and possibly EP2, are still being not fully understood. लेकिन अफेक्ट एक माना जाता है, अगर उसको देखा जाए तो अफेक्ट्स ऑन डायरेटिक एक्टिविटी वो ये हो सकता है, PGE2 क्या करता है, EP1, EP3 एंड EP2 रिसेप्टर्स के थ्रू वो लूप ऑफ हेनले का थिक असेंडिंग लिम्ब पार्ट, उसमें सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है। जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो डायूरेसिस हो जाएगी। डायूरेसिस किस तरह से होगी, सोडियम जहाँ जाएगा उसके साथ वाटर भी आएगा। अब इस तरह से यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो इस तरह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी अपना काम कर रही है। These actions significantly enhance the diuretic effectiveness of loop diuretics. NSAIDs that block prostaglandin synthesis can interfere with the activity of loop diuretics by reducing their effectiveness. Next हम बात कर लेते हैं पेप्टाइड्स के ऊपर। पेप्टाइड्स जैसे कि एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, इसके अलावा ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, इसके अलावा C टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड्स, ये अलग अलग जगह से सिंथेसाइज हो रहे हैं। जैसे कि ANP, BNP हार्ट में सिंथेसाइज हो रहा है, जबकि CNP CNS से आ रहा है। तो हम इन तीनों को नहीं कह सकते कि ये रीनल ऑटोकॉइड्स में कैटेगराइज किए जा सकते हैं, क्योंकि ये ऑटोकॉइड्स की कैटेगरी में नहीं आते। इनका सिंथेसिस का जो एरिया है, जो लोकेशन है, इनके टारगेट ऑर्गन से बहुत दूर है, इसलिए हम इनको ऑटोकॉइड्स में कैटेगराइज नहीं कर सकते। हाउएवर पेप्टाइड्स के जैसा ही एक चीज़ है यूरोडाइलेटिन, बिल्कुल ANP के जैसा होता है। वो किडनी में डिस्टल ट्यूब्यूल सेल्स में सिंथेसाइज होता है और वो लोकली किडनी में एक्ट भी करता है। तो ANP, BNP एंड CNP, इनको हम रीनल ऑटोकॉइड्स तो नहीं कह सकते, लेकिन इनका काम रीनल ऑटोकॉइड्स के जैसा है। कैसे? ये क्या करते हैं, ये भी और यूरोडाइलेटिन भी, इनका मैकेनिज्म क्या है, ये क्या करते हैं, ये दे स्पेसिफिकली एक्ट ऑन सोडियम पोटाशियम ATPase पंप इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल सिस्टम। अब जब ये वहाँ पे जाके एक्ट करते हैं तो ये नेट्रीयूरेसिस करवा देते हैं, मीन्स टू से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहे हैं ये, ठीक है। अब क्लिनिकल एप्लीकेशंस अगर देखी जाए तो हमारे पास एक सिंथेटिक पेप्टाइड भी है, बिल्कुल यूरोडाइलेटिन के जैसा ही एक बनाया गया है, वो है यूलैरिटाइड, and it is also being investigated for clinical use, particularly in acute heart failure due to its ability to improve cardiovascular parameters and promote diuresis without affecting creatinine clearance. इसके अलावा BNP के जैसा ही एक और एजेंट है नज़ेरिटाइड, एंड ANP के जैसा जो कि जापान में अवेलेबल है कारपेरिटाइड. They are already in clinical use primarily for managing acute heart failure. अब हम डायरेटिक एजेंट्स की बेसिक फार्माकोलॉजी को लाइन बाय लाइन देख लेते हैं, जिनमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स को, नंबर 2 थायराइड डायरेटिक्स को, नंबर 3 लूप डायरेटिक्स, नंबर 4 पोटासियम स्पेरिंग डायरेटिक्स एंड नंबर 5 ऑस्मोटिक डायरेटिक्स. सो नाउ स्टार्टिंग विद द कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स. सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड डेवलपमेंट की अगर बात करें तो 1937 में कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स वर द फर्स्ट मॉडर्न डायरेटिक्स. While newer agents have largely replaced them for diuretic purposes, they still have specific medical applications, especially in ophthalmology and neurology. अगर mechanism of action की बात करें तो these diuretics they basically act on proximal convoluted tubule of the nephron. ये क्या करती हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होता है एक वहाँ पर, ये उसको इनहिबिट करते हैं. दे रिड्यूस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट लीडिंग टू एन इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड वाटर. हम ये भी आगे एक इमेज के थ्रू देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि अपना काम कैसे करें. और अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, दे आर वेल एब्जॉर्ब ऑरली. दीज इनहिबिटर्स इंक्रीज यूरिन pH within 30 minutes, peak at 2 hours and can persist for 12 hours after a single dose. मतलब याद रखने वाली बात यह है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स यूरिन की pH को बहुत बढ़ा देते हैं. ये सोडियम बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा करवा देते हैं, उसकी वजह से यूरिन की pH बढ़ जाती है.
अभी अपना काम कैसे कर रहे हैं हम आगे इस इमेज के थ्रू समझ लेते हैं। अब इस इमेज के थ्रू हम देख लेते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स अपना काम कैसे कर रहे हैं, जिसमें ड्रग आती है एसीटाजोलामाइड। एसीटाजोलामाइड अपना काम कैसे कर रही है। अब आप देख सकते हो कि ये एक सेल बना है, रीनल सेल, जो कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल का सेल है। इसके लेफ्ट साइड पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को रिप्रेजेंट किया हुआ है और राइट साइड पे ल्यूमेन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप इस सेल को अगर गौर से देखो तो इस सेल के ऊपर 2 ट्रांसपोर्टर्स बनाए हुए हैं मैंने। ट्रांसपोर्टर लेफ्ट साइड पे जो लगा हुआ है उसको हम सिम्पोर्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में सोडियम और बाइकार्बोनेट आयन को सेंड कर रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखो राइट साइड पे जो ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है वो एंटीपोर्टर है, सोडियम और हाइड्रोजन का। आप देख सकते हो कि सोडियम और हाइड्रोजन टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए इसको एंटीपोर्टर भी कह सकते हैं। अब मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं कि ये अपना काम कैसे करते हैं। ल्यूमेन में अगर आप देखो तो सोडियम बाइकार्बोनेट ब्रेक हो रहा है सोडियम में और बाइकार्बोनेट आयन में। आप देख सकते हो कि वो राइट साइड पे लगे ट्रांसपोर्टर की वजह से वहाँ से हाइड्रोजन आयन आता था, वो इस बाइकार्बोनेट में ऐड हो जाता था और कार्बोनिक एसिड बन जाता था। कार्बोनिक एसिड जब बन जाता था तो कार्बोनिक एसिड के ऊपर कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम ऐड करता था। ये जो Ca लिखा हुआ है मैंने, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम उस कार्बोनिक एसिड को तोड़ के वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता था। आगे से वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ करती हुई रीनल सेल के अंदर आ जाती थी। रीनल सेल के अंदर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है जो कि इन दोनों की कन्वर्जन करवा देता था कार्बोनिक एसिड में। कार्बोनिक एसिड अगेन आगे से कन्वर्जन हो जाती थी उसकी हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में, जिसकी वजह से होता ये था कि जो हाइड्रोजन आयन है वो दोबारा से उसी एंटीपोर्टर को यूज़ करते हुए बाहर निकल जाता था। और आपके लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हो कि बाइकार्बोनेट आयन सोडियम के साथ बाहर निकल के सोडियम बाइकार्बोनेट ECF में चला जाता था। तो हमारा इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट ECF के अंदर सर्कुलेट करता रहता था और सोडियम अल्टीमेटली रीअब्जॉर्ब हो जाता था। अब होगा क्या जब ये एंजाइम, आप इस सेल के अंदर अब दोबारा देखो, इस सेल के अंदर जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा। जब हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा तो हाइड्रोजन आयन के एक्सचेंज में सोडियम इस सेल के अंदर नहीं आएगा, तो अल्टीमेटली सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन रुक जाएगी। तो हमारा मकसद पूरा हो गया, हमने सोडियम को अंदर रीअब्जॉर्ब नहीं होने देना। हम सोडियम को चाहते हैं कि वो ल्यूमेन के अंदर रहे और डायरेसिस के थ्रू वो बाहर निकल जाए। सोडियम वहाँ रहेगा तो मीन्स वाटर भी उसके साथ वहीं रहेगा। अब होता क्या है कि यूरिन की pH इस वजह से भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट वहाँ पर रह रहा है अपनी असल फॉर्म में, वो कन्वर्जन नहीं हो पा रही, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम इनहिबिट हुआ है, इस वजह से सोडियम कार्बोनेट जो है वो अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है और यूरिन की pH बढ़ती जा रही है। इसी वजह से हम कहते हैं कि एसीटाजोलामाइड यूरिन की pH को बढ़ा देता है, अल्कलाइन करवा देता है। अब अगर हम बात करें क्लिनिकल इंडिकेशंस फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, नंबर 1 विल बी ग्लूकोमा में यूज़ करवा सकते हैं। यूरिनरी अल्कलाइनाइजेशन करवाने के लिए हम यूज़ करवा सकते हैं। नंबर 3 मेटाबॉलिक अल्कलोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करवा सकते हैं। नंबर 4 एक्यूट माउंटेन सिकनेस में यूज़ करवा सकते हैं। नंबर 5 में देखें अगर कुछ अदर यूजेस विल बी, इट कैन बी यूज एज एडजंक्ट्स इन एपिलेप्सी ट्रीटमेंट एंड हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक paralysis, effective in managing CSF leakage by reducing CSF formation and intracranial pressure. It can increase urinary phosphate excretion in severe hyperphosphatemia. अब हम बात करते हैं कुछ उसकी टॉक्सिसिटी, कॉन्ट्राइंडिकेशन और ADRs रिलेटेड। टॉक्सिसिटीज़ में सबसे पहले तो नंबर 1, जब ये यूरिन की pH को अल्कलाइन करवा रहा है तो ये ऑब्वियसली मेटाबॉलिक एसिडोसिस को इंड्यूस करवाएगा, तो टॉक्सिसिटी का चांस हो सकता है कि ये करवा सकता है हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसके अलावा रीनल स्टोन्स की फॉर्मेशन का बहुत चांस है क्योंकि अल्कलाइन इन्वायरमेंट ऑफ यूरिन कैन फेवर कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन फॉर्मेशन। इसके अलावा रीनल पोटाशियम वेस्टिंग बहुत इसका एक बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। रीनल पोटाशियम वेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जो पोटाशियम है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो के निकलता रहेगा यूरिन के थ्रू। अगर ADR की बात करें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पोटाशियम डिप्लीशन, इसके अलावा रीनल स्टोन फॉर्मेशन, ड्राउजीनेस, पैरास्थीजिया मतलब टिंगलिंग, पिन्स एंड नीडल्स फील होना पाँव में, हाथों में। इसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर बात करें, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स को। Next up are thiazide diuretics, one of the most widely used diuretic classes, particularly in the treatment of hypertension.
Thiazides acts on the distal convoluted tubule of the nephron where they inhibit the sodium chloride symporter. इनको हम लो सीलिंग डायरेटिक्स भी कहते हैं बिकॉज इंक्रीजिंग द डोज अबव नॉर्मल थेरेपेटिक डोजेज डजंट प्रमोट फॉर द डायरेटिक रिस्पॉन्स. अगर ड्रग्स की बात करें तो थायाजाइड में हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड है, क्लोरोथायाजाइड है, थायाजाइड लाइक डायरेटिक्स में है कुछ ड्रग्स, क्लोरोथैलिडोन, इसके अलावा इंडेपेमाइड एंड मेटोलाजोन. अब अगर आप मैकेनिज्म देखिए इसका स्पेसिफिकली, तो जो कि मैं पहली बात कर चुकी हूँ कि ये क्या करते हैं, डिस्टल कन्वलेटेड टिब्यूल, इसके अलावा लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग पार्ट, कॉर्टिकल रीजन जो असेंडिंग पार्ट होगा उसके अंदर सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर या जिसको हम सिम्पोर्टर भी कहते हैं, वहाँ पर ये उस को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करते हैं. जब ये ट्रांसपोर्टर इनहिबिट हो जाता है तो बेसिकली ये ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व था सोडियम और क्लोराइड की अब्जॉर्प्शन के अंदर. जब ये ट्रांसपोर्टर इनहिबिट हो जाएगा तो ऑब्वियसली सोडियम और क्लोराइड जो है वो रीनल सेल से होते हुए ब्लड में नहीं आएंगे, सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा. सो दे हैव अ लेजर इफेक्ट इन द प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड टिब्यूल. ज़्यादा मेन काम इनका डिस्टल कन्वलेटेड टिब्यूल के अंदर ही होता है. अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसके एक्शंस की बात करें तो दे कैन फॉर्म हाइपर और स्मॉलर यूरिन. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोडियम और क्लोराइड की एक्सक्रीशन हो रही है, अब्जॉर्प्शन तो रुकी हुई है क्योंकि को ट्रांसपोर्टर इनहिबिट है. इसके अलावा लॉस ऑफ पोटासियम, लॉस ऑफ मैग्नीशियम, डिक्रीज यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन, रिड्यूस पेरिफेरल वैस्कुलर रेसिस्टेंस आर सम ऑफ द एक्शंस ऑफ थायाजाइड डायरेटिक्स. एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो पोटासियम डिप्लीशन, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया आर सम ऑफ द मेजर एडवर्स इफेक्ट. इसके अलावा वॉल्यूम डिप्लीशन हो जाती है. क्यों? ड्यू टू कंसनट्रेटेड यूरिन, नॉट अ डाइल्यूटेड वन यूरिन इज फॉर्म्ड. थेरेपेटिक यूजेस की अगर बात करें तो हाइपरटेंशन में हम यूज़ करवा सकते हैं, हार्ट फेलियर में अगर तो हाइपरकैल्सी यूरिया हो रहा है किसी को तो हम वहाँ यूज़ करवा सकते हैं. इसके अलावा डायबिटीज़ इंसिपिडस में यूज़ करवा सकते हैं. नेक्स्ट आ जाती हैं लूप डायरेटिक्स जिनको हम हाई सीलिंग डायरेटिक्स भी कहते हैं. हाई सीलिंग डायरेटिक्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर इनकी रिकमेंडेड डोज से भी ज़्यादा अगर डोज बढ़ा के दे दी जाए तो उतना ज़्यादा डायरेटिक इफेक्ट आता है. इसके अलावा ड्रग्स की अगर बात करें तो ड्रग्स आ जाती हैं ब्यूमेटानाइड, फ्यूरोसिमाइड, टॉर्सिमाइड, एथेक्रेनिक एसिड. इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, they work by inhibiting the sodium potassium chloride co-transporter which is responsible for the reabsorption of about 25% of the sodium load. By blocking this transporter, loop diuretics prevent sodium reabsorption, leading to a significant increase in the excretion of sodium chloride and water. So ultimately diuresis हो जाती है. This makes loop diuretics highly effective in conditions where rapid and extensive diuresis is required, such as in acute pulmonary edema, heart failure, and in cases of severe hypertension. और अगर ADRs की बात करें तो ऑटोटॉक्सिसिटी, हाइपरयूरिसीमिया, acute hypovolemia, potassium depletion, and hypomagnesemia are one of the major adverse effects of loop diuretics. एक्शंस इसकी ये हैं कि ये कैल्शियम का कंटेंट जो है वो यूरिन के अंदर इंक्रीज़ करा देता है अनलाइक थायाजाइड्स. इसके अलावा ये रीनल ब्लड फ्लो भी इंक्रीज़ करता है. थेराप्यूटिक यूजेस मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ और हम आगे चलते हैं अब पोटासियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स की तरफ. So now let's discuss potassium sparing diuretics. Unlike other diuretics, these drugs work by conserving potassium in the body. Potassium sparing diuretics act on the distal convoluted tubule and the collecting duct of the nephron, where they inhibit sodium reabsorption while allowing potassium to be reabsorbed. अब दो ड्रग्स आ जाती हैं यहाँ पर, दो तरह की क्लास आ जाती है. नंबर 1 इज़ एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट जिसमें दो ड्रग्स हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन, एंड नंबर 2 इज़ एप्लिरिनॉन. इसके अलावा है ट्राइएम्पटीन एंड एमिलोराइड. अब एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट और उसके बरअक्स ट्राइएम्पटीन एंड एमिलोराइड डिफरेंटली वर्क करती हैं लेकिन एंड रिजल्ट सेम है दोनों का. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर स्पाइरोनोलैक्टोन की बात करें तो स्पाइरोनोलैक्टोन क्या करता है, एक सिंथेटिक स्टीरॉयड है जो कि एंटागनाइज करता है एल्डोस्टेरोन को, और एल्डोस्टेरोन नॉर्मली इन्वॉल्व होता है पोटासियम की एक्सक्रीशन में एंड सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन में. जब एल्डोस्टेरोन एंटागनाइज हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, तो ऐसा होने की वजह से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती और पोटासियम जो है वो बाहर नहीं निकल पाता ल्यूमेन के अंदर. इसकी वजह से अल्टीमेटली पोटासियम स्पेयरिंग इफेक्ट आता है. पोटासियम की वेस्टिंग ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है, और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होती. अल्टीमेटली हमारे दो गोल अचीव हो जाते हैं. नेक्स्ट है एप्लिरिनॉन. एप्लिरिनॉन भी एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है और इसका भी सेम एक्शन है
बिल्कुल स्पाइरोनोलैक्टोन की तरह। आगे चलते हैं जी, एक्शंस की बात कर चुके हैं। थेरापेटिक यूजेस की बात करें अगर तो डायरेटिक के तौर पे इस्तेमाल होते हैं ये। इसके अलावा सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में, हार्ट फेलियर में, रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन में, एसाइटीज़ में एंड पीसीओज़ में इस्तेमाल हो सकते हैं। एडीआरस की अगर बात करें तो गैस्ट्रिक अपसेट, एंडोक्राइन अफेक्ट्स, गायनिकोमास्टिया, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस एंड हाइपरकलीमिया आर वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स और एडीआरस ऑफ पोटासियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, स्पेसिफिकली स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एटप्लिडिनोन। नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्राइएम्पटेरिन एंड अमीलोराइड के बारे में। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये सोडियम ट्रांसपोर्ट चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। दैट विल रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन सोडियम पोटासियम एक्सचेंज इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. So action is independent of aldosterone presence. Diuretic action is similar to aldosterone antagonist. पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक एक्शन होता है इनका। और अगर एडीआरस की बात करें तो ये हाइपरयूरेसीमिया करवा देते हैं। इसके अलावा रीनल स्टोन्स का एक रिस्क बढ़ा देते हैं। पोटासियम रिटेंशन करवा सकते हैं, तो हाइपरकैलीमिया हो सकता है। Now let's turn our attention to osmotic diuretics, also known as aquaretics. These diuretics work differently from others as they increase urine output by creating an osmotic gradient rather than by directly altering ion transport in the nephron. और इसमें आ जाती हैं मेनली एक ही ड्रग, मैनिटोल. They are freely filtered by the glomerulus but are not reabsorbed by the renal tubules. This means they remain in the renal tubules and attract water into the urine, increasing the urine volume. तो क्योंकि ये इंटरफेयर नहीं करते सोडियम रीअब्जॉर्प्शन के साथ, सो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स डू नॉट कॉज सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस. अगर क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो दीज ड्रग्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन मैनेजिंग कंडीशंस लाइक सेरिब्रल एडीमा. इसके अलावा इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ा हो तो उसको कम करने के लिए, एंड इन केस ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी वेयर दे कैन हेल्प प्रिवेंट द ओलिगोयूरिक फेज बाय मेंटेनिंग यूरिन फ्लो. इसके अलावा रीनल टॉक्सिन को अगर किडनी से रिमूव करना हो उस केस में हम यूज़ करवा सकते हैं. अगेन हम क्लिनिकल यूजेस पे बात कर चुके हैं. और टॉक्सिसिटी की अगर बात करें तो मेनली इसका एक अफेक्ट रहता है एडीआरस के अंदर. हम कह सकते हैं डिहाइड्रेशन, hyperkalemia, hypernatremia, extracellular volume expansions. So that concludes our discussion on diuretics. These drugs are a powerful tool in the management of various conditions, but they must be used with caution due to their potential side effect and interactions. And thank you for joining me on Pill Talk. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe and hit the notification bell icon. Stay healthy and stay informed. See you soon.